press the bell icon on دوستو YouTube عزیزو and پیارے never miss ساتھیوں، another update. آج میں اپنے یوٹیوب چینل میں لے کر حاضر ہوں میں درخشاں اردو 10واں کا تیسرا افسانہ، تیسرا چیپٹر، تیسرا لیسن سید محمد محسن جن کا افسانہ ہے فرار لے کر حاضر ہوں۔ یہاں لکھا ہوا ہے سید محمد محسن کا شمار اردو کے عام افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ نفسیات کے پروفیسر تھے، نفسیات منوبیگیان، وہ نفسیات کی اور نفسیات ان کا خاص موضوع تھا۔ ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ انوکھی مسکراہٹ اور اردو دنیا میں کافی مقبول و معروف ہوا۔ اس مجموعے کی بیشتر کہانیاں نفسیاتی نوعیت کی ہیں۔ خاص طور پر انوکھی مسکراہٹ ڈاکٹر محمد محسن کی ایک ایسی کہانی ہے جس کے ذکر کے بغیر اردو افسانے کی تاریخ شاید مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش 10 جولائی 1910 عیسوی کو پٹنہ میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ پٹنہ میں۔ ان کے والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ محسن صاحب نے 1926 عیسوی میں رام موہن رائے سمیزی پٹنہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1928 عیسوی میں پٹنہ کالج سے آئیے اور 1931 عیسوی میں نفسیات کے ساتھ بی اے آنرس کا امتحان پاس کیا اور 1934 عیسوی میں نفسیات میں ہی منوبیگیان میں ہی پٹنہ یونیورسٹی سے ایم اے فرسٹ کلاس سے پاس کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ 1938 عیسوی میں وہ پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے۔ پھر 1948 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوئے۔ 1953 عیسوی میں وہ شعبہ نفسیات میں صدر شعبہ نفسیات مقرر ہوئے اور 1974 عیسوی میں وہ اپنی ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ ان کی کتابوں میں انوکھی مسکراہٹ، افسانوں کا مجموعہ، نفسیاتی زاویے، نفسیاتی مضامین کا مجموعہ، زخم کے پھول، شعری مجموعہ بہت اہم ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی دوسری کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں۔ سید محمد محسن کی 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ سید محمد محسن کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ آپ نے 1973 عیسوی میں اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کا فریضہ بھی ادا کیا تھا۔ سید محمد محسن کی وفات 2002 عیسوی میں علاج کے دوران دہلی میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ دہلی میں ہوئی۔ دوستو اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی پڑھیے، سنیے، پڑھوائیے، سنوائیے اور اس سے بہت سارے فائدے حاصل کیجیے۔ اگر آپ اس کہانی کو، اس چیپٹر کو یا کوئی بھی درخشاں اردو یا کوئی بھی چیپٹر کو اگر 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار اگر سنتے ہیں تو آپ کو یہ کہانی پڑھائی یاد ہو جاتی ہے اور یاد ہو جائے گی تو سارے کوشچن سالو ہو جائیں گے۔ آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، سرچ کیجئے اور موبائل میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فی الحال میں ٹاپک پہ آ رہا ہوں۔ یہاں لکھا ہوا ہے محمود ماں کی طرف آواز محمود کے کان میں گونج گئی۔ وہ بازو کے کمرے میں حساب بنا رہا تھا، چونکہ پڑھنے والا لڑکا تھا۔ حساب کی کاپی سمیٹے بغیر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کا نام خطرہ کی گھنٹی کی طرح اس کے کان میں بج رہا تھا۔ وہ بھاگا ہوا ماں کے پاس آیا۔ اس کی ماں کا فربا جسم غصہ سے کانپ رہا تھا۔ غصے والی عورت تھی اس کی ماں، جیسے تند ہوا میں برگد کا درخت ڈول رہا ہو۔ ابری ہوئی آنکھیں، لال انگارا سا چہرہ، پھیلی ہوئی گردن دیکھ کر سہم گیا۔ گویا منظر اس کے لیے نیا نہیں تھا، چونکہ یہ اس کے لیے منظر نیا نہیں تھا، برابر غصے میں دیکھتا تھا اپنی ماں کو۔ معصوم فرشتہ کی طرح نظریں نیچی کیے محمود ماں کے روبرو کھڑا ہوا۔ یہ منفعلانہ انداز آنے والی آفت کے مقابلے میں اس کا تنہا ہتھیار تھا۔ بلا انہیں باہر سے، محمود کی ماں کہتی ہے بلا انہیں باہر سے، کس کو؟ باپ کے بارے میں کہتی ہے، محمود کے باپ کے بارے میں۔ محمود کی ماں نے گرجتے ہوئے کہا آپ کو بلا رہی ہے۔ محمود نے رکتے رکتے کہا، اپنے والد کو کہا محمود نے، مجھ سے کیا کام ہے؟ محمود کے والد بولتے ہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ غصہ میں ہے تو ہوا کرے، انہیں تو ہر وقت غصہ ہی چڑھا رہتا ہے۔ اچھا چلو آتا ہوں۔ اب محمود کے ماں کی آواز سن کر
उसके वालिद कहते हैं कि अच्छा चलो मैं आता हूँ। उसके बाद बाप ने कुर्सी से उठते हुए कमजोर आवाज में कहा। महमूद के बाप को देखकर उसकी माँ और बुलंद आवाज में गरजने लगी, तुमने मेरी मिट्टी पलीद कर डाली। नौज इस दिन को जब मेरे बाप तुम्हारे साथ मेरी शादी की। अब जो गुस्से में जो है महमूद की माँ महमूद के वालिद को डांट रही है, बोल रही है, फटकार रही है। आखिर कुछ कहोगी भी या यूं ही बके जाओगी? महमूद के बाप ने आहिस्तगी से सवाल किया। हाँ, मैं तो बकवास मचाती ही हूँ, पागल सरी सब कुछ हूँ। अरे भाई, मैं कब तुम्हें पागल कह रहा हूँ? अपने मुंह जो चाहो कह लो। महमूद के वालिद कहते हैं ये बात। हाँ जी, तुम सा शरीफ दुनिया में कौन होगा? महमूद की माँ कहती है, जाने दो मैं रजील सही कमीनी सही, लेकिन तुम्हारे घर में अब एक मिनट मेरा कदम नहीं जम सकता। अरे भाई, खुदा का वास्ता कुछ बताओगी तो। हाँ, कैसे भूले हैं आप, गोया कुछ जानते ही नहीं, बैठे बैठे सारा फसाद मचाते रहते हैं, और ऊपर से देखो तो जैसे मोम की गुड़िया। मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया है कि अब मुए वकील के यहाँ न जाया करो, लेकिन तुम कहाँ मानने वाले। इसकी उसकी जोरू तो डाई है, उसी और डाई बनकर मुझे निकलने की फिक्र में है, और तुम उसके घुल मिलकर मीठी मीठी बातें किया करो। अरे भाई, आहिस्ता बोलो, मोहल्ला वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? महमूद के वालिद कहते हैं, तुम्हें तो खामखा शक पैदा हो जाता है। महमूद के वालिद कहते हैं। महमूद की माँ ने और चीख चीख कर बोलना शुरू किया। हजारों गालियां वकील को दी, सैकड़ों सब बातें महमूद के बाप को सुनाई। महमूद अपनी उम्र के 10वीं ही साल में यतीम हो गए, उनके वालिद मर गए, और बाप के मरने के थोड़े ही अरसा बाद उसकी माँ भी उसे छोड़ गई। किस्मत ने उसे उसके इशरत ज़दा मामू के मकान में मुंतकिल कर दिया। मतलब ऐश इशरत वाले मामू का घर था, धनी मनी थे, उनके पास वो चला गया। जिंदगी की दुश्वारियां उसके लिए एक नामुहार लेकिन आकबत अंदेश उस्ताद बन गए। माहौल की नासाज तफूलित और शबाब के दरमियान माहल फांद कर इंसानी तामीर की आखिरी मंजिल तक पहुंच गया। महमूद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता था, जहां उसकी तन्हाई पसंदी और हवानियत का उसके साथ बराबर मजाक उड़ाया करते थे। यूनिवर्सिटी की फिजा को एजुकेशन लड़के और लड़कियों की एकजा तालीम की वजह से गहरी रुमानी हो गई थी। महमूद के साथ ही जादू बयानी और गर्म जोशी के साथ उन फिरदौसी मनाजिर की तस्वीरें उसके आगे खींचते। महमूद की तबीयत भी गदगदी सी पैदा हो जाती। यार, तुम्हारे सीना में दिल नहीं, लकड़ी का टुकड़ा है, इसके दोस्त कहते, महमूद के दोस्त, जिस पर बिजली का असर नहीं होता। कल क्लास में खालिदा किस तरह नजरें बचा बचा कर तुम्हें तक रही थी। काश वह इस तरह मुझे देखती होती। यकीन मानो मैं अपना कलेजा निकाल कर रख दिया होता। अजीम ने अपने खास पर जोश अंदाज में कहा, खैर मजाक वगैरह खत्म करो। बेचारी मासूम लड़की पर जो तुम इस किस्म की तोहमत लगाते हो, ये तो बहुत नामुनासिब बात है। तोहमत कैसी? ये लोग, इसके दोस्त, महमूद के दोस्त लोग इससे बातें कर रहे हैं लड़की के बारे में। अच्छा, हॉस्टल में अक्सर होता ही है, बच्चे लोग एक साथ जाते हैं तो हंसी मजाक करते रहते हैं। हम उन्हें घूरते रहते हैं और वह बेचारियां हमें नोकते तकले से भी रही। और भाई, तुम्हें तो अपना मोल मालूम नहीं। काश मेरे अंदर तुम्हारी शक्ल सूरत होती, मेरी जिंदगी एक मुस्तकिल रुमानी होती। रुमान अजीम ने सीना तानते हुए कहा, आज शाम को नुमाइश आओ तो तुम्हें दिखा दूं कि यार उन नुक्तादां के लिए कैसी सिलाए आम है। मैं तुम्हारे कहने पर आज शाम को नुमाइश जाऊंगा, फिर वहां से किसी रिस्तोरां में चलना, लेते आना अपनी
किसी महपारा को वह भी मेरी इस्तकामत आजमाया लेगी। महपारा मतलब लड़की के बारे में कहा गया है, लड़की किसी अपने चाहने वाले को लेते आना। वाकई चलोगे या सिर्फ आंख में बोल रहे हो? अजीम ने महमूद के चेहरे पर नजरें जमाते हुए सवाल किया। महमूद किसी दावत के बाद कदम पीछे हटाना जानता ही नहीं। महमूद ने फातिहाना अंदाज में जवाब दिया। अजीम तो महमूद से वादा लेकर चला गया, लेकिन महमूद एक अजीब तासराती कशाकश में मुब्तला हो गया, जैसे कोई किसी गुनाह के इर्तिकाब का इरादा करके पछताने लगा हो और नताइज के महोम लेकिन होश रदात तसव्वुरात व कैफियत के सांचा में ढल कर उसकी रूह में पेवस्त हो रहे हों। महमूद की उंगलियां गैर इस्तरारी तौर पर रौना कर उसकी नब्ज टटोलने लगती, जिससे उसे बुखार का एहसास हो रहा हो। इसके दिल में एक गैर मामूली वहशतनाक दीवानगी की कैफियत महसूस हो रही थी, जैसे कोई रात के सन्नाटे में खुले मैदान में खौफ खाने लगता हो। इस गैर मामूली इजमहलाल और खुशतगी का कोई सबब महमूद की समझ में न आता था। वो हॉस्टल से बाहर निकला और कदम तेज करता हुआ नुमाइश को रवाना हुआ। काफी दूर पहुंच चुकने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह गलत रास्ता पर चल लग गया है। उसे अपनी इस भूल पर हैरत सी हो रही थी। उसके पांव सर्द हो गए और वह देर तक उसी जगह मबहूत खड़ा रहा, जैसे उसे सोखता सा हो गया हो। अब नुमाइश जाना बिल्कुल बेसुध है। उसने कहा, अजीम इंतजार करके कहीं और जा चुका होगा। वह अपने कमरा की तरफ लौट आया और कुर्सी पर बैठकर अपनी उस खुद फरामोशी का जायजा लेने लगा। आखिर उसे वो किया गया था, उसकी समझ में कुछ न आता था। अपनी खुद इत्मादी पर यह कारी जर्ब कई दिनों तक महमूद के दिमाग में उलझने पैदा करती रही। गो अजीम से उसने तबीयत की खराबी का अवसर पेश कर दिया था, जिसे अजीम ने बहानासाजी कर टाल भी दिया। आगे लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी की तालीम के बाद मुकाबला के इम्तिहान में शामिल हुआ और उसे डिप्टी कलेक्टरी मिल गई। निस्बतें उसकी तालीम के वक्त ही से आती थी। अब बड़े बड़े घरानों से पैगाम आने लगे, यानी कि महमूद जो है मेहनत करके और कामयाब हुआ और डिप्टी कलेक्टर की नौकरी उसको मिल गई। अब जो है बड़े बड़े घरों से उसके शादी के पैगाम आने लगे। एक दिन महमूद घर से वापस आया तो घर की वीरानी उसे काटती हुई महसूस हुई। उसे अपनी जिंदगी हयात की एक बेरूह नकल नजर आने लगी। घर के सन्नाटे में दीवार से लगी टक टक करती हुई घड़ी उसके दिमाग पर ठोकरे सी मारने लगी। घड़ी का पेंडुलम उसे अपनी जात के उम्र का मालूम होने लगा। वैसा ही एक तरीका और एक रंग पर हरकत करता हुआ वह कब तक मशीन से पुर्जों की तरह जिंदगी गुजारता रहेगा। उसने सोचा और फैसला किया कि वह बहुत जल्द शादी करके जिंदगी की कैफियत माँ बीवी से हम किनार होकर रहेगा। मतलब कि औरत से उसको तकलीफ इसलिए थी कि माँ जो है उसकी जब हयात में थी तो बार बार जो है उसके वालिद को तकलीफ देती थी, बोलती थी, डांटती थी, फटकारती थी। इसी के लिए वो जो है औरतों से अलग रहना पसंद करता था। उसी शाम को उसने अपनी सारी पिछली निस्बतों से नए सिरे से गौर करना शुरू कर दिया। पुरानी बातों को याद करना। अक्सर और बेशतर के मुतालिक उसे इल्म था कि वहां अब उसके लिए जगह खाली न रही थी। बाकी मानदा चंद निस्बतों में उसे एक हर एतबार से काबिल इतना मालूम हुई। सिर्फ लड़की की तारीफ मुकम्मल थी, लेकिन लड़की का सन ज्यादा न था, कम उम्र की लड़की थी, इसलिए यह खामी दूर की जा सकती थी। महमूद ने उस निस्बत
कि अरसर नो छेड़छाड़ कराई, बात पुख्ता हो गई, मतलब शादी की बात पुख्ता हो गई और अकद भी जल्दी हो गया। लेकिन रुखसती लड़की के मेडिकेशन पास करने तक मतलबी रखी गई, मतलब कि विदागरी नहीं हुई, रुखसत नहीं हुई लड़की, इसको रखा गया कि मैट्रिक पास कर लेगी, उसके बाद इसका रुखसती होगी, इसकी विदागरी होगी। इम्तिहान का नतीजा जुबैदा की खातिर ख्वाह कामयाबी का मुद्दा लाया। नतीजा जुबैदा जो है, जुबैदा लड़की का नाम था जिससे इसकी शादी हुई थी, हो गई। महमूद खुशी से दीवाना हो गया, उसके ख्वाब अब हकीकत बनने वाले थे। वह इस ख्याल की लज्जत से सरशार हो रहा था। दूसरे ही दिन से महमूद अपनी शादी की तैयारी में मनहुमक हो गया। उसने दफ्तर से 2.5 माह की मुसलसल फुर्सत ले ली, छुट्टी ले ली अपने दफ्तर में, ये तो छुट्टी ले ली, कितने दिन की ली? 2.5 माह की, 2.5 महीने की छुट्टी ले ली। अब जो है शादी के अखराजात पर उसने कसीर रकम खर्च की। शहर के सारे मुअज्जिन को बारात की शिरकत की दावत दी। इससे पहले मैं बोला हूँ यहाँ पे तो सिर्फ निकाह हुआ था, शादी हुई, मतलब निकाह हुई थी, अब यहाँ शादी की बात हो रही थी, ठीक है। लेकिन ससुराल में कदम रखने के बाद उसके अंदर एक अजीब हैरत अंगेज तगीर पैदा होने लगा था। उसकी आंखें बेनूर और मतोहशी दिखाई देने लगी थी। उसका जिस्म बर्फ की तरह सर्द होता जा रहा था और चेहरा की सुर्खी रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे फीकी पड़ती जा रही थी, जैसे कोई दूर से एक भयानक मंजर देख रहा हो। बाहर के लौजमात के बाद जब महमूद को जनाना मकान के अंदर ले जाया जाने लगा तो उसके पाँव में जनाना मकान मतलब औरत का घर, औरत जिसमें औरत रहती है, औरत की लड़खड़ाहट पैदा हो गए और उसके सारे जिस्म में एक हैबतनाक थरथराहट जैसे उसे शिद्दत का जाड़ा लग रहा था। आगे कदम बढ़ाना उसके लिए नामुमकिन हो गया। औरतों में महमूद की इस कैफियत पर हलचल सी मच गई। उसके ससुर को इतला दी गई। वह भागा हुआ महमूद के करीब आया, मिजाज परसी की तबीयत का हाल दरियाफ्त किया, लेकिन महमूद को जैसे सांप सूंघ गया था। उसके मुंह से एक लफ्ज ना निकला, जैसे वह दफ्तर गूंगा हो गया या उसने अभी बोलना सीखा ही न हो। मतलब के घुटन सा माहौल जो औरत, जो उसकी माँ उसके वालिद के साथ करती थी, वही सारा मामला जो है उसको याद पड़ने लगा, जिसकी वजह से उसका हाल ऐसा हो गया। तो दोस्तों अब जो है मैं, अब साथियों, दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, अब जो है इस लेसन का कुछ क्वेश्चन और आंसर मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है मुख्तसर तरीन सवाल, छोटे सवाल, छोटे मुख्तसर मतलब छोटा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो इनकी पैदाइश पटना शहर में हुई। दूसरा सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश बताइए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी है। तीसरा सवाल, जेर निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? तो इसमें आपके निसाब में अफसाना का नाम है फिराक। चौथा सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत हासिल थी? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन को नफ्सियात मौजू पर महारत हासिल थी, महारत रखते थे। अगला सवाल है, तो इसको आप किताब से मिलाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों तो मुझे बताना था कि आप जो है मेरे चैनल से लगे रहिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके और जुड़ जाइए और बेफिक्र होकर मेरे YouTube चैनल से आप पढ़िए। एक लेसन को 5 बार 10 बार उसको बार बार सुनिए ताकि आपको ये कहानी याद हो जाए, ये चैप्टर याद हो जाए, ताकि आपको सवाल जवाब बनाने में आसानी मिले। और मैं बच्चों से ये भी कहूंगा कि रोज आप जो है एक पन्ना किताब देख कर लिखिए ताकि आपका राइटिंग बढ़िया बने।